Good morning, student of class 5. How are you? I hope you all are fit and healthy. So student, today date is 7 January 2021. I am teaching you chapter number 6 and name of the chapter is Natural Calamities. Let's do little recapitulation what we have done in our previous video. So in previous video we are discussing the natural calamities, the condition which is not in our control. So a sudden change in the surrounding which causes damage to human being and the property, that is known as natural calamity. So I have already explained you flood, and after that what are the reason for the flood, what precautions we have to take at the time of flood, and how we can control the floods. So these all things we have already discussed in the previous video. After that we are discussing what is a drought. When a particular area does not receive a rainfall for a long period of time, leading to scarcity of water due to hot weather, it is said that area is affected by the drought. So student, we have discussed what are the in previous video we have discussed what are the causes of drought, that is location and deforestation. Location and deforestation. Now let's start with what are the effects of drought. Now see student, what are the effect of the drought? All the ponds, lake, rivers dry up and there is no drinking water for the animals and the human beings. So these are the effects of the drought, that all the ponds, lakes, rivers dry up and even there is no drinking water for the animals and human beings. This is the effect of the drought. Second, without water the crops die. So student, we know that for the cultivation water is required, and if there is no rainfall, then what's happened, the crop will die, and even there is no food for the cattle, जो अपने संग एनिमल्स को ह्यूमन बींग्स रखते हैं डोमेस्टिक बना के, उनके लिए भी खाना नहीं रह जाता है.
ड्रॉट की कंडीशन में, क्योंकि सारी क्रॉप खराब हो जाएगी। ठीक है, वाटर क्या है, वाटर की बहुत स्कैरसिटी है, वाटर है ही नहीं, तो ऐसे में क्या होगा, देयर इज नो फूड फॉर द एनिमल्स आल्सो। जो जानवर, पालतू जानवर उन्होंने पाल रखे, उनके लिए भी कोई फूड नहीं रह जाता है। सो व्हाट्स हैपन, ड्यू टू विच दे स्टार्ट टू स्टर एंड देन डाई। भूख के मारे जब उनको खाने को नहीं मिलेगा तो फिर एनिमल्स क्या करते हैं, दे स्टार्ट डाइंग, वो मरने लगते हैं। ठीक है, जब उनको खाने को ही नहीं मिलेगा, कंडीशन इतनी खराब होती है ड्रॉट में कि वाटर की बहुत स्कैरसिटी होती है। इवन अभी मैंने डिस्कस किया फर्स्ट पॉइंट में, देयर इज नो, इवन देयर इज नो वाटर, no drinking water for animals and human beings. Okay, so in the same manner, when there is no crop, no grass, then there is no food for the cattle also, and starved means भूखे रहना। अब जब खाने को ही नहीं मिलेगा तो जानवर भी क्या होने लगेंगे, डाई करने लगेंगे, मरने लगेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, no new crops can be grown as the soil become dry, so the farmer are the worst hit at the time of a drought and they start to stray. अब देखो, no crops grow as the soil become dry, थर्ड इफेक्ट क्या है, no crop grow, so when there is no water, जब वाटर होगा ही नहीं तो क्रॉप्स हो सकती है, इट इज पॉसिबल, कल्टीवेशन इज पॉसिबल, नो इट इज नॉट पॉसिबल। सो इन दिस कंडीशन एट द टाइम ऑफ द ड्रॉट, सबसे ज्यादा बुरी हालत किसकी होती है बेटा, फार्मर्स की होती है। इज इट क्लियर, सबसे द मोस्ट लिखा है ना इसमें, सो द फार्मर्स आर द वर्स्ट हिट एट द टाइम ऑफ ड्रॉट एंड दे स्टार्ट टू स्ट्रे, मीन्स अब व्हेन देयर इज नो क्रॉप, बिकॉज विदाउट वाटर कल्टीवेशन इज नॉट पॉसिबल। बिना पानी के कल्टीवेशन हो सकता है, नहीं हो सकता, खेती नहीं हो सकती बिना पानी के। इज इट क्लियर, बिना पानी के बेटा खेती नहीं हो सकती है। तो सबसे ज़्यादा बैड कंडीशन जो होती है वो किसकी होती है, फार्मर्स की होती है, और वो भी भूख के मारे, जब खाने को ही नहीं होगा तो वो भी मरने ही लगेंगे। ठीक है, क्योंकि जब क्रॉप्स नहीं होगी, कल्टीवेशन ही नहीं होगी, तो फूड ही नहीं होगा खाने के लिए, तो वो क्या करेंगे, तो भूख के मारे इवन ह्यूमन बींग्स आल्सो स्टार्ट डाइंग। नेक्स्ट है, the whole nation also suffer as there is lack of vegetable and fruit supply which led to increase of price of the commodities. So अब देखो, कंट्री के किसी पार्ट में अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है ड्रॉट की, तो पूरा नेशन सफर करता है, बिकॉज द प्राइस ऑफ द थिंग्स इंक्रीज। जब उस, क्योंकि पॉपुलेशन हमारी कंट्री की क्या है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। ठीक है, अब जब उस एरिया में ड्रॉट हो गया, कल्टीवेशन ही नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो इससे क्या होगी, जो अदर फ्रूट डेली यूज की जो थिंग्स है, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, सप्लाई, ये सब के प्राइजेस क्या है, इंक्रीज हो जाएंगे। लिखा है ना, टू इंक्रीज ऑफ प्राइस ऑफ द कमोडिटीज, सो थिंग्स विच वी नीड, तो डेली यूज की जो चीज़ें हैं वो क्या हो जाएंगी, उनके प्राइस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, वो चीज़ें भी बहुत महंगी मिलने लगेंगी। तो ये भी एक रीज़न है। तो एक बार रिकैप्चुलेट कर लेते हैं, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ द ड्रॉट। ड्रॉट के क्या क्या इफेक्ट हैं। फर्स्ट इज दैट एट द टाइम ऑफ ए ड्रॉट द पाउंड्स, लेक्स एंड रिवर ड्राई अप एंड इवन देयर इज नो ड्रिंकिंग वाटर फॉर द एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। एक ये कंडीशन है, सारी नदियां हैं, पाउंड्स हैं, लेक्स हैं, झीलें, सब का पानी क्या हो जाता है, सूख जाता है। इवन ड्रिंकिंग के लिए तक पानी नहीं मिलता है एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स को। दिस इज द वन कंडीशन। अनदर कंडीशन, विदाउट वाटर द क्रॉप्स डाई एंड इफ देर इज नो रेनफॉल, अगर कल्टीवेशन में अगर रेनफॉल नहीं हो रही है तो क्रॉप्स लग सकती है, नहीं लग सकती हैं।
इज इट क्लियर? और एंड देयर इज नो फूड फॉर द कैटल्स आल्सो, जो पालतू जानवर रखते हैं ह्यूमन बींग्स अपने पास साथ, उनके लिए भी कोई खाना नहीं होता। और इससे क्या कंडीशन अराइज होती है, भूख के मारे वो जानवर क्या है, मरने लगते हैं। ठीक है। थर्ड इफेक्ट जो हमने डिस्कस किया, नो क्रॉप्स ग्रोन कैन बी ग्रोन एज द, कोई क्रॉप नहीं होगी, बिकॉज विदाउट रेनफॉल सॉइल क्या हो जाएगी, बिल्कुल ड्राई और हार्ड हो जाएगी। ठीक है। नो न्यू क्रॉप्स कैन बी ग्रोन एज द सॉइल बिकम ड्राई। सो सबसे ज्यादा जब सूखा पड़ता है ड्रॉट के कंडीशन में, सबसे ज्यादा बुरा हाल जो होता है बेटा वो फार्मर्स का होता है, भूख के मारे वो भी मरने लगते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट जो हमने इसमें डिस्कस किया, द होल नेशन आल्सो सफर। ओके, एज देयर इज लेक ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट सप्लाई विच लेड टू इंक्रीज द प्राइस ऑफ द कमोडिटीज। पूरा नेशन इससे सफर करता है। ठीक है, क्योंकि जब क्रॉप्स नहीं होगी, ये सब नहीं होगी, तो व्हाट हैपन, जो चीजें हैं उन चीजों का क्या, द प्राइस क्या हो, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, उन चीजों का प्राइस क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। अब क्या है, वी कैन कंट्रोल ड्रॉट बाई, हाउ वी कैन कंट्रोल द ड्रॉट। अब हम इसे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? कंट्रोल now see how we can control the drought. We can control drought by, first point they are planting more trees, this is called it afforestation, this will bring in more rainfall. First क्या है, planting more trees. Okay, planting more trees, and planting of tree is known as, this is called it afforestation. Okay, and this will bring in more rainfall. So how we can control the drought student? हम ड्रॉट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? देखो, फर्स्ट पॉइंट है प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज, एंड इससे पहले मैंने बताया था कटिंग ऑफ द ट्रीज इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन, कटिंग ऑफ द ट्रीज इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन, एंड प्लांटिंग ऑफ द ट्री इज नोन एज एफॉरेस्टेशन, and this will bring in more rainfall. So the question arises, how the plants help in bringing the rainfall? So what, the roots of the plants absorb the water and they utilize this water to prepare their food, and rest of the water is lost by the plant. And from which part of the plant? Leaves. And the loss of water from the plants is known as transpiration. इसे क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। तो जब पेड़ होंगे, ठीक है, जब पेड़ होंगे तभी तो ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस ज्यादा होगी, और जब ट्रांसपीरेशन होगा then only there is a good rainfall in that area. Is it clear? तो that is the reason the tree help to bring the rains. ट्री हेल्प करती है रेन को लाने में। ठीक है, क्योंकि ट्री से जो लॉस होता है वाटर, वो क्या हो जाता है, इवापोरेट होता है। ट्री से जो वाटर लॉस होता है वो इवेपोरेट होता है, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। एंड व्हेन देयर इज नो ट्रीज, अगर ट्रीज नहीं होंगे तो ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस क्या होगा?
बहुत लेस होगा या होगा ही नहीं. तो दैट इज द रीजन in that area condition arises of the drought. There is no rainfall in that area. Next है encourage water harvesting which increase the level of groundwater that can be used for irrigation of field. Irrigation of field. Water harvesting. ठीक है. अब देखो encourage the people for सो अब देखो ये वाटर हार्वेस्टिंग, इसमें क्या करते हैं बेटा, जमीन में बड़े बड़े गड्ढे करते हैं. ठीक है. उसके बाद पीबल्स लेते हैं, स्टोन छोटे वाले, और इसमें सैंड भी होता है. एंड आफ्टर दैट बहुत बड़े बड़े गहरे गड्ढे करते हैं और इसके अंदर छोटे पत्थर पीबल्स हैं, स्टोन्स को और सैंड से इसको भर देते हैं. ठीक है. सो एट द टाइम व्हेन देयर इज अ मॉनसून सीजन, जब होता है, जब बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है, तो दिस हार्वेस्टिंग प्लांट्स जो बनाते हैं एट दैट टाइम इट ऑब्जॉर्व द वाटर. ये जो इन्होंने, जो आप लोग वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट बनाओगे, गड्ढे करके उसमें स्टोन्स पीबल्स डाल दिए और उसमें सैंड से भर दिया. सैंड वाटर को बहुत तेज ऑब्जॉर्व करता है. तो एट द टाइम ऑफ रेनी सीजन व्हेन देयर इज एक्सेस ऑफ रेनफॉल, तो एट दैट टाइम व्हाट हैपन, दिस वाटर इज ऑब्जॉर्व इन दिस, एंड दिस वाटर ये कहाँ जाएगा, ये अंडरग्राउंड वाटर हम लोग देखो ड्रिंकिंग पर्पस में भी यूज करते हैं. जिससे हम लोग जमीन से वाटर कैसे निकालते हैं, हैंडपंप से निकालते हैं, या ट्यूबवेल से, या सबमर्सिबल है. बाय दिस वी टेक आउट द अंडरग्राउंड वाटर. सो ये क्या करेगा, वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट्स बनाने से ये अंडरग्राउंड वाटर के लेवल को क्या कर देगा, हाई कर देगा. ऐसे क्या होता है बेटा, ड्यू टू व्हेन देयर इज ए रेनफॉल, आप लोग देखते होगे आफ्टर सम टाइम एट द टाइम ऑफ रेन, तो ऑल ग्राउंड्स आर सबमर्ज्ड विद द रेन वाटर. आप लोग रेन के समय देखते होगे कि सारे ग्राउंड क्या है, भर जाते हैं. किससे भर जाते हैं, रेन वाटर से भर जाते हैं. एंड आफ्टर फ्यू डेज आप ऑब्जर्व करते होगे कि वो वाटर गायब हो गया. तो वो वाटर कहाँ चला जाता है, वो वाटर इवापोरेट हो जाता है. इज इट क्लियर? व्हेन द सनलाइट फॉल्स ऑन दैट वाटर, सो वाटर ड्यू टू द हीट ऑफ द सनलाइट, वाटर चेंज इन द फॉर्म ऑफ ए वाटर वेपर, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज इवापोरेशन. तो आप अगर ये वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट्स बनाते हो तो इससे क्या फायदा होगा, वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट से आप at that time, at the time of a rain, when there is water, this rain water is absorbed in this harvesting plant and it goes down and it increase the level of the ground. ये ग्राउंड के लेवल, जो अंडरग्राउंड वाटर के लेवल को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा. एंड when the underground water level is increased, so you can use this water in irrigations also. Irrigation means at the time of a cultivation, irrigation what है, IRRIGATION. So what is the irrigation? Irrigation means at the time of a cultivation we पूरे जो लैंड होता है जहाँ पे हम लोग क्रॉप लगाते हैं, तो उसकी सिंचाई करनी पड़ती है. ठीक, खेतों को पानी से भिगाते हैं पहले सॉइल को सॉफ्ट करने के लिए. इसी को इरिगेशन कहते हैं. तो वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट मेथड के थ्रू आप मॉनसून सीजन में, बाय दिस मेथड वाटर इज ऑब्जॉर्व इन दिस हार्वेस्टिंग प्लांट एंड दिस वाटर इंक्रीज द लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर. ठीक है. एंड दिस वाटर यू कैन यूज एट द टाइम ऑफ कल्टिवेशन ऑल्सो. इज इट क्लियर? सो that is the use of a water harvesting plant. Now let us discuss some of the fill in the blanks given in your book.
Now see, fill in the blanks. Fill in the blanks. First fill in the blank is a natural calamity. Natural calamity is not in control ऑफ डैश। तो ये तो मैंने आपको चैप्टर के बिगनिंग में ही बताया था। नेचुरल कैलेमिटी जो है ये किसके कंट्रोल में नहीं है, ह्यूमंस के कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। दीज आर द सडन चेंजेस इन द सराउंडिंग्स विच आर नॉट इन आवर कंट्रोल, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। सो ए नेचुरल कैलेमिटी इज नॉट इन कंट्रोल ऑफ ह्यूमंस। सेकेंड, natural calamity causes damage to dash and dash. So natural calamity causes damage to human beings, natural calamities causes damage to human beings and their property. And their property, ठीक है। नेचुरल कैलेमिटी किसको डैमेज करती है? इट्स कॉजेज डैमेज टू ह्यूमन बीइंग्स एंड देयर प्रॉपर्टी। आप लोग देखते हो कि बाढ़ आती है तो बहुत से पानी घरों में जब इंटर, सारे घर के अंदर पानी इंटर कर जाता है तो घर के अंदर रखे सारे सामान क्या है, खराब हो जाते हैं। इज इट क्लियर? सो प्रॉपर्टी को भी बहुत नुकसान होता है नेचुरल कैलेमिटीज के समय। ड्यूरिंग फ्लड डैश ओवरफ्लो, ड्यूरिंग फ्लड्स डैश ओवरफ्लो, ये ऑलरेडी मैंने आप लोग को बताया था। एट द टाइम ऑफ ए मॉनसून सीजन what happened? Due to excess of water in the river, when there is excess of water in the river, then what happens? The river water overflow and it submerge the surrounding area, ठीक है। जब मॉनसून सीजन में एक्सेस वाटर हो जाता है रिवर में तो रिवर वाटर क्या है, ओवरफ्लो करके ये क्या कहता है, जो सराउंडिंग्स एरिया होते हैं उनको कवर कर देता है। इज इट क्लियर? So during flood dash overflow, during floods river overflow, फ्लड के समय मतलब बाढ़ के समय क्या ओवरफ्लो करता है, रिवर्स ओवरफ्लो करती है, ठीक है। एंड अब नेक्स्ट है, इन ड्रॉट देर इज नो डैश, इन ड्रॉट देर इज
in drought there is no dash. तो ड्रॉट के समय ये कंडीशन क्यों अराइज होती है? द कंडीशन ऑफ द ड्रॉट अराइजेज ड्यू टू when a particular area does not receive a rainfall for a long period of a time, and due to this there is a scarcity of water due to the hot weather, and that area, what we say that this area is affected by the drought. So in drought there is no rainfall. Now next natural calamity which we discuss, that is the earthquake. What is earthquake? So let do little recapitulation. See the whole drought we have discussed, the effects of drought we have discussed, and after that how we can control the drought, that we have discussed. Now we have completed the fill in the blanks of the book. Now let start with the another natural calamity, that is earthquake. That is earthquake. Now see, first of all let's see what is the definition of a earthquake. Disturbance deep inside the earth's earth surface that causes sudden shaking of the surface is called an earthquake. So student, what is earthquake? Disturbance deep inside the earth surface. Okay, disturbance deep inside the earth surface that causes sudden shaking of the surface is called an earthquake. So when we are talking about the earthquake, मतलब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? भूकंप के बारे में बात कर रहे हैं. अचानक से अर्थ का सरफेस क्या है? हिलने लगता है, शेकिंग होने लगती है अर्थ की. ठीक है, हम कहते हैं जमीन हिलने लगी. So what is the reason for that? To understand this, first of all let understand
that our earth is made of many layers. Okay, so earthquake. Thank you, student.